हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक के कुछ कंसेप्ट और उसके कुछ सम्स। सो इंटीग्रेशन, एज वी नो, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हम आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। So as we know, derivative is defined by d by dx, or we can say this is nothing but tool of differentiation, tool for derivative, derivative of any function. As we say derivative, derivative belongs to only five functions. We can say L, A, I, T, E. L stands for logarithmic function, A stands for algebraic, I stands for inverse, T stands for trigonometric and E stands for exponential. यही 5 फंक्शंस है और इसी 5 फंक्शंस के ऊपर हमारे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलेज है और ये 5 फंक्शंस हमें इंटीग्रेशन में भी कैरी फॉरवर्ड करना है और इंटीग्रेशन में अपने कुछ टाइप्स है और उनके अपने कुछ और फॉर्मूलेज है। सो हम इसको इंटीग्रेशन को रिलेट करेंगे डेरिवेटिव से। अगर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रॉपरली आता होगा डेरिवेटिव का, तो हमें इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा। As we know, derivative of sin x is cos x. So what we can say, it is antiderivative. So we can say cos x dx, cos x का डेरिवेटिव sin x। अब यहाँ पर प्लस सी आता है। The reason plus c is, consider any value that we can differentiate. अगर हमने यहाँ पे sin x plus 5 लिया और इसका हमें डिफरेंशिएशन, ये हमने y कंसिडर किया, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो व्हाट वी राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। आफ्टर दैट वी राइट dy by dx। नाउ sin x, derivative of sin x is cos x. What about this constant? This constant will become 0. So we consider that there is a constant that gives us the output as 0. 0 is once again a part of constant. So we don't write this part 0. Will not consider in the further part. This gives you answer as cos x. तो यहाँ पे अगर कोई पार्ट होगा तो वो पार्ट 0 होगा और फिर वो पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका अगर हम कहते हैं कि इट इज एंटी डेरिवेटिव, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके साथ एक कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी कांस्टेंट लिखते हैं जब कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं। तो if we move further, d by dx of cos x. So we represent d by dx of cos x is minus sin x, and integration of sin x dx is minus cos x plus c. These are the very we can say minute things, basic things that we need to learn in the very initial part. ये हम पार्ट बाद में समझेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए हमें ये इनिशियल स्टेज में ही समझना है। As we move further, differentiation of or derivative of, we can say uh, we got sin x cos x, sec x. So we note that derivative of sec x is sec x into tan x. In integration part, integration of sec x into tan x will be equivalent to sec x plus c and so on. हमें ऐसे ही और सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को रिलेट करके हम सबको लिख पाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फंक्शंस में हमारे पास e रेज टू x होता है। e रेज टू x का डेरिवेटिव d by dx ऑफ e रेज टू x, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट, और इंटीग्रेशन में भी वही होता है। As we move further, a raised to x का डेरिवेटिव, a raised to x of derivative of a raised to x gives us a raised to x into log a, while integration of a raised to x gives us dx a raised to x upon log a.
If you move further, we say derivative of x raised to n. The very first part, what we need to do, x raised to n. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. But in the integration part, x raised to n gives us x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c plus c plus c. ऐसे बहुत सारे टाइप्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हम डिराइव कर पाएंगे एक दूसरे से रिलेट करके. If you move further, what is derivative of tan x? D by dx of tan x, derivative of tan x is sec square x. So what should be the integration of sec square x? Integration of sec square dx is equal to tan x plus c. Similarly, it is cot x, derivative of cot x, it is minus cosec square x. So integration of cosec square x dx is minus of cot x plus c and so on. Now, this was all about the comparing of formulas of differentiation and integration. You can easily compare the remaining formulas as well. Now, the main part, whenever we write sine of ax plus b, and we used to derived it, or we used to find the derivative of this sine ax plus b, it would become cos of ax plus b into derivative of ax plus b into derivative of ax plus b. So what we get is cos of ax plus b into a is constant, so a remains as it is. What is derivative of x? It is 1 and b constant. So we directly write whenever we get the format of ax plus b, जब कभी भी हमें ax plus b मिलेगा तो हम directly a लिख देंगे, मतलब x का coefficient. Either it will be positive or it will be negative. It might be in the format of sine of 3 minus of 2x. It is still in this format, ax plus b, but you know that value of a is minus 2. So in this case, cos of 3 minus of 2x into minus 2. We can directly write here. It gives us derivative of ax plus b in the further part, but we can directly write that into minus 2 into coefficient of x. In the same part, if we integrate, integration of sine of ax plus b. Now we know that as integration of sine x is minus cos x. So the answer would be minus of cos of ax plus b into 1 upon coefficient of x, that is a. Here we got the coefficient of a in the part of multiplication. In this we got in the denominator. Similarly, if we say cos of 5x, integration of cos of 5 plus c will be there, plus c will be also there. So cos of 5x, cos 5x dx. So the answer will be sine of 5x upon 5 plus c, because it is in the format of ax plus, we don't know that the part of b is 0. So we can represent it as 5x by 5. Moving to the further part, as we all know, we got number of sums in integration. One by one we'll see and we'll look into the concept as well. जो concept जब आएगा, जो type जब आएगा, वो type हम सीखेंगे और फिर हम उसको solve करेंगे. ये हमारे integration के first exercise के 5 questions है first question के. So let's start with this. The very first question is x raised to 3 plus x raised to 2 minus x plus 1. So we know that it should be in the format of, as a part of symbol, integration of x raised to 3 plus x raised to 2 minus x plus 1. So this gives us like this part. ये पूरा ब्रैकेट है. अब इनिशियली जब हम करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 3 dx minus of integration of x raised to 2 dx minus integration of x plus
1 है यहाँ पे, so integration of 1 dx. Now, as we know that integration of x raised to n dx is what? X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. This is integration of the common used formula of integration x raised to n. So यहाँ पर this is in the same format x raised to n. So we can express this integration terms as x raised to 4 plus upon 4 minus of x raised to, this gives us 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus x raised to, it is nothing but 1. So 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus integration of 1. Here we got the concept behind this is the same concept. 1 can be represented as x raised to 0. If we solve or if we integrate in this format, so we get x raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1, and that gives us answer. Here integration of 1. 1 can be represented as x raised to 0, and x raised to 0 can be represented in the format of x raised to n. That gives us x raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1. So 0 plus 1 will become 1, and this will also become 1. So we get integration of 1 dx as always as 1. So integration of 1, this gives us x, and the plus c of this, plus c of this, plus c of this, plus c of this. So we are not going to write 4c, because ultimately c1 plus c2 plus c3 plus c4, all these are constant, and this constant we can combine with a single constant. This will constant, this constant will get add to this, that gives us constant, again a constant, again a constant. So addition of this all will be a constant, so we directly represent the c in the last. So we have integrated it. Now we have to just simplify and arrange and write it. So x raised to 4 upon 4 minus x raised to 3 upon 3 minus of, sorry, this becomes plus, extremely sorry, it is plus from the x raised to 2 upon 2 plus x and plus c. So this is your answer. Moving on to the next question. X square into 1 minus of 2 upon x the whole square. Now this type of question, again integration and dx. This type of question we have to handle with very care. It is square. A minus b the whole square. It is in that format. So it is a square minus 2ab plus b square. That gives us 4 upon x square dx and integration. Now the x square will get multiplied to each and every term. So if we multiply x square to each and every term, that gives us x square integration of x square माइनस ये हमें 4 मिलेगा 4 अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे या कुछ कैंसलेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा माइनस 4x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 4 और ये dx. अब हम इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx माइनस, हमेशा ध्यान में रखो, या whether we are dealing with integration or differentiation, whenever we get constant and function together, we have to write constant as it is and integrate or differentiate the function. So 4 becomes as it is an integration of x dx plus 4 remains as it is integration of 1 dx. Now the last part, just we need to integrate it. So what will be integration of x raised to 2? X raised to 2 gives us x raised to 2 plus 1, or directly we can write 3 by 3 minus 4. What is x raised to 1? It is in the format of x raised to n का integration. So ये हमें मिलेगा x raised to n plus 1 upon n plus 1. So this is 4, and that gives us x raised to, you can write 1 plus 1 upon 1 plus 1, or directly 2 upon 2 plus 4 1. What is integration of 1? It is x. So this is x, and combination of all constant we will write
a single constant. So we'll solve third question. 3 यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल होना चाहिए और ये dx. 3 x square x minus 4 upon x plus 1 upon x root x minus 7. So as we need to do integration separately, so if we write 3, that gives us equal to 3 into integration of x square x minus 4, we need to write dx over there. So it gives us dx minus 4 upon integration of 1 upon x dx plus. Now simplification of this x root x, 1 upon x root x can be represented as, we can directly write it as 1 upon x root x. X root x can be represented as 1 upon x raised to 1 into x raised to half. So that gives us 1 upon x raised to 3 by 2. If we take to the numerator, that gives us x raised to minus 3 by 2. So we can directly write x raised to minus 3 by 2 dx plus, sorry, it is minus 7 integration of dx. We can erase this. Now just we need to integrate according to the formula what we know. 3 integration of sec square x dx, it is tan x minus 4 integration of 1 upon x, it is log x. Those who don't know formulas of integration, you need to learn it. You need to, at anyhow, at any cost, you need to learn it, because without formulas of integration as well as differentiation, trigonometric function, we can't solve integration and differentiation. Plus, now we have to handle with very carefully. X, it is in the format of x raised to n. So the formula for x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So that gives us x raised to minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 minus of 7 into x plus c. So the last step, 3 tan x minus of 4 log x plus x raised to minus 3 by 2 plus 1. If you solve this, you will get x raised to minus half upon x raised to minus half minus 7x plus c. If you want to write in a more simplified way, 3 tan x, हमें simplified way में अगर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 log x, x raised to half हो जाएगा root x, माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, हमने गलती से लिख दिया है, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव भी हमने यूज कर दिया, ये 2 भी हमने यूज कर दिया. अब ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और रूट एक्स हाफ को हम लिखते हैं रूट एक्स माइनस 7x प्लस सी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर है. ये हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. The fourth question is again integration of this part, 2x raised to 3 minus 5x plus 3 by x plus 4 upon x raised to 5. Again integrating with in a different terms. So 2 into integration of x raised to 3 minus of 5x, or 5 into we can write dx over here. हमें ये dx लिखना है यहाँ पर minus 5x dx plus 3 into integration of 1 upon x dx plus 4 into integration of 1 upon x raised to 5 dx. So integrating it, 2 into x raised to 3, it is in the format of x raised to n integration dx, that gives us x raised to n plus 1 upon n plus 1. So we can write 3 plus 1, 4 upon 4 directly, minus 5 into x raised to 1, we can represent x raised to 2 upon 2 plus 3 into, what is 1 upon x ka integration, it is log x plus 4. Now integration of x raised to 5 we can't do in the denominator. So we would have written here itself, it is 4 into 1 upon x raised to 5. So we can represent here itself that 1 upon x raised to 5, if we take to the numerator, that becomes x raised to minus 5. ये हो जाएगा x raised to minus 5. Now we can integrate it properly. It is in this the same format what we got above.
तो ये हमें मिलेगा एक्स रेज टू -5 + 1 अपॉन -5 + 1। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, सो वी गेट एक्स रेज टू 4/2 -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू ये हो जाएगा -4 अपॉन -4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें हमें और एक स्टेप लिखना होगा, एक्स रेज टू 4/2 -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x माइनस, अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड में लिखेंगे तो एक्स रेज टू -4 है, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो एक्स रेज टू +4 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, you got numerator as well as denominator in this, so ये easy है, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम डिनोमिनेटर एक्सप्रेस करेंगे, डिनोमिनेटर हमें मिलेगा x रेज टू 3/2, ये 1 हो जाएगा, ये हाफ, 1 + हाफ दैट गिव्स अस 3/2, x रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3 -2x + 5 इसका इंटीग्रेशन। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये तीनों को बिलोंग करेगा, सो हम तीनों को सेपरेटली लिखेंगे तो 3x रेज टू 3 अपॉन x रेज टू 3/2 -2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x रेज टू 3/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 3/2 dx. The minor mistake should be ignored by you as I have told before. So यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 है और ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2 माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x रेज टू 3 माइनस ऑफ 3/2 का सब्ट्रैक्शन माइनस ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये x रेज टू 1 है, माइनस ऑफ 3/2 सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -3/2 dx एंड dx अगेन। सो यहाँ पे 3 - 3/2 अगर हम अलग से करेंगे सॉल्व, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये 1 दिस गिव्स अस 6, 6 - 3/2 अगेन 3/2 मिलेगा, सो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 dx माइनस 2, 1 माइनस अगर हम करेंगे 1 माइनस ऑफ 3/2 तो ये मिलेगा 2 - 3/2 दैट गिव्स अस -half, so integration of x raised to -half plus 5 into integration of x raised to -3/2 dx। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, -2 रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सिंबल हमें एलिमिनेट करना है, तो x रेज टू -half प्लस 1 अपॉन -half प्लस 1 प्लस 5 इंटू x रेज टू -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 एंड यहाँ पे प्लस c मिलेगा, हमने इंटीग्रेट कर दिया इसके लिए, 3 into this gives us 5/2, so we can represent x raised to 5/2 upon 5/2 minus 2 remains as it is into x raised to 1 minus half, it is half upon again half plus 5 into -3/2 plus 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x raised to -half upon -half and plus c. If we solve this 5/2, 2 will move on to the numerator side and 5 remains in the denominator. So if 2 will move on to the numerator side, it gives us 6/5 into x raised to 5/2 minus, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 into x raised to half. Half can be represented as root x. अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, बट ये माइनस के साथ जाएगा तो -10, ये माइनस हो जाएगा और 2 into 5 10 एंड x रेज टू -half है, हाफ होता है रूट एक्स, अगर माइनस है तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस सी। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस। चलते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे, यस ये एक्स्ट्रा है लगता है, यस।
सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 1 2 वी गॉट 10 क्वेश्चंस, और इन 10 क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। tan स्क्वायर एक्स, अब हम थोड़ा सा ट्रिकी लेवल पे आ गए हैं। इट सीम्स टू बी वेरी इजी, as we know that we got integration of tan x, integration of tan x as integration of sec square as tan x, but we don't have as of now integration of tan square x dx. तो हमें क्या करना है, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट करना होगा sec स्क्वायर x में, क्योंकि हमें फिर उसका इंटीग्रेशन मिलेगा। tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। दैट गिव्स अस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर एक्स, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन मिलेगा x प्लस c। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन is what? Sin 2x upon cos x इंटीग्रेशन dx। अब इसके लिए हमें कुछ इंटीग्रेशन रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आने चाहिए, जैसे कि डबल एंगल वाले। अब डबल एंगल के फॉर्मूले, sin 2x का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। cos 2x में हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हैं। वी गॉट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अगेन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तीन फॉर्मूले से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इन यही तीन फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूलेज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने cos 2x कंसिडर कर लिया, यहाँ पर भी ये भी cos 2x है। अगर हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे तो इससे हम और एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। हमने अगर इसको, यहाँ पे cos 2x है, ये हम अगर हमने इस साइड ले लिया तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर ये इस साइड चला जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, एंड साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे और एक रिलेट करके फॉर्मूला आता है, या इस वाले से, अगर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है तो कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा, इट इज 1 प्लस कॉस 2x upon 2. So these two formulas are important formulas as well. सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब आते हैं हमारे सम पे, साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dx, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स। कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स dx। as everyone knows that integration of sin x is ये 2 as it is minus cos x plus c। Moving on to the next question, cos 2x upon sin square 2x। अब यहाँ पर cos 2x के तीन फॉर्मूला है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में एक बार चेक कर लो कौन सा वैल्यू दिया है, sin स्क्वायर x दिया है, तो हमें जो जिसमें sin स्क्वायर x अप्लाई होगा, सॉरी ये cos स्क्वायर x नहीं, यहाँ पे cos 2 थीटा या 2x को अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये पहला फॉर्मूला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूलेज में बहुत बार लिखते रहूंगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। अब cos 2x और sin स्क्वायर x में, तो cos 2x को हमें sin स्क्वायर x में डिफाइन करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज द तो सेकेंड फॉर्मूला। सो न्यूमरेटर कैन बी expressed as 1 minus of 2 sin square x upon sin square x. Now this denominator will apply to both the part. So if we separate it, 1 upon sin square x minus 2 dx, 2 constant integration of sin square x upon sin square x. My handwriting is, as you all know, very good, so you need to adjust with that. Sin square x and sin square x cancel हो जाएगा, 1 upon sin square x हमें मिलेगा cosec square x इंटीग्रेशन dx और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब आगे बढ़ेंगे तो what is integration of cosec square x? We got minus cot x, and
माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने थर्ड किया, सेकंड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो ये सेम वाला पार्ट है, cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स भी है, जैसे कि हमारे पास, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोग के लिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, तो हमें ये भी नहीं यूज करना है, ये भी नहीं यूज करना है, हमें ये यूज करना है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर द कन्वर्जन, न्यूमरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन sin square x into cos square x. So we know that the numerator will apply to both the part, denominator will apply to both the numerator part. तो ये होगा कैसे? cos square x upon sin square x into cos square x minus sin square x upon sin square x into cos square x। ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन कॉस, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सो वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि cos 2x अगर आएगा तो हमें तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर डिनोमिनेटर में दोनों दिया है तो हमें दोनों जिसमें यूज होता है वो यूज करना है। अगर एक दिया है, साइन दिया है तो साइन यूज करना है, कॉस दिया है तो कॉस यूज करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये एक टाइप ऑफ सम है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये एक टाइप है, ये एक फॉर्मेट है। इसको हम जब कभी भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स दिखेगा, हम उसको रैशनलाइज करते हैं। सो इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर हो जाएगा साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पर dx। डिनोमिनेटर का वैल्यू हमें मिलेगा, ये साइन एक्स है और ये माइनस उसके साइन स्क्वायर एक्स है। डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप थोड़ा स्लो वीडियो करके देख लीजिए। अब डिनोमिनेटर दोनों को अप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos square x dx। इफ यू मूव फर्दर, यहां पर भी dx आ जाएगा। sin x और अपॉन cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x दो टाइम है, उसको हम cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx। tan स्क्वायर x का जैसे कि हमें पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमें उसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर देखो ये कुछ नहीं है, मतलब वन अपॉन कॉज इज सेक एक्स और साइन अपॉन कॉज हो जाएगा tan x dx, यहाँ पर भी dx इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ ये मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन, चलो और एक स्टेप लिख देते हैं हम लोग, सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx माइनस, इसमें दो पार्ट है, दो टर्म्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस 1
1 का इंटीग्रेशन इट इज x प्लस सी। सो दिस वाज, ये एक टाइप है जहां पे हमें जब कभी भी 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा, तो हम उसको इस फॉर्मेट में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 अपॉन tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब ये जो सम है ये सम प्रीवियस मेथड वाला ही सम है, और इसको आप दो वेज में सॉल्व कर सकते हो। या तो आप sec x माइनस tan x के साथ रैशनलाइज कर सकते हैं, या तो हम इसको tan x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज sin x अपॉन cos x अपॉन sec x will be represented as 1 upon cos x plus tan x is represented as again sin x upon cos x। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x है, तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा sin x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये प्रीवियस सम जैसे ही मिलेगा, जो कि प्रीवियस सम हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में sin x बचा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin x बचा है, तो यही हमारा एक्सप्रेशन है अब तक। अब इसके बाद क्या करना है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। सो इसके बाद हमें रैशनलाइज करना है sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x dx। इसके बाद प्रीवियस सम में जो हमने स्टेप्स किए थे वो सारे स्टेप्स आपने इसमें सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, तो ये हमें मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला है, अगेन हमें इस टाइप के सम्स आने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस भी आने चाहिए। 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। हमने 1 के प्लेस पे, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी, 1 के प्लेस पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखा, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इट इज 2 sin x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x into cos x। Now very carefully we have to check this। We know that a plus b the whole square, what that gives us? It gives us a square plus 2ab plus b square। So उसी तरह यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, हमें उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर plus 2a and this is b and b square। So if we reduce this, so this gives us cos x plus sin x the whole square dx। So integration of square and root will get cancelled, integration of cos x plus sin x dx, integration of cos x, we need to write it separately, cos x dx plus integration of sin x dx। Integration of cos x is sin x and integration of sin x is minus cos x plus c। ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का 1 माइनस कॉस 2x का हमारे पास फॉर्मूला है। cos 2x के कितने फॉर्मूलाज है? cos स्क्वायर x, जितनी बार ये आएगा उतनी बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, ताकि आप इरिटेट हो जाओगे बट आपको ये समझ में आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x है, तो नेगेटिव वाला पार्ट ये cos 2x, ये सेकंड फॉर्मूला चेक करो। अगर हमने इसको यहां पर लिखा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ये हमने टर्म इस साइड लिया तो ये एक्चुअली हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इस साइड ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x और उसी तरह 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x dx, ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल होके हमें मिलेगा साइन x dx। √2 व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x? माइनस cos x प्लस c।
Last question number 2. Integration of sin 4x into cos 3x dx. This is a type of formula. This is a type of formula. यहाँ पे 2 sin x cos y या 2 sin a cos b को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी 2 sin a cos b आता है तो हमारा फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब इसमें और भी फॉर्मूलेज है, 2 cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसमें और दो फॉर्मूलेज है, 2 cos a cos b, ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। द लास्ट वन इज 2 sin a इंटू sin b, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ cos of just hold on, I'll erase it, cos of a minus b minus of cos of a plus b। अब ये चारों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम ये यहाँ पर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए और कॉस बी है, तो साइन ए कॉस बी के आगे 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमें वो 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 1/2 और ये 2। अब ये साइन 4x और इंटू साइन 3 कॉस 3x हो जाएगा। अब हम फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये cos 3x हो जाएगा और ये dx। 2 sin a cos b, 1/2 remains as it is. This gives us sin a plus b. So we'll get sin of 7x and plus, middle is plus sin a minus b. So this gives us sin x and dx or integration. 1/2 remains as it is. It is entire for the entire part. Integration of sin 7x dx plus integration of sin x dx and this half. So 1/2 remains as it is into integration of sin 7x is minus cos 7x upon 7 plus again integration of cos x is minus 7 minus sin x minus sin x, integration of sin x is extremely sorry, integration of sin x is minus cos of x and plus c. So we can multiply this 2 and the next step will be minus of cos 7x upon 14 minus cos 2x upon 2 plus c. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। द क्वेश्चन गिवन टू यू इज x अपॉन x प्लस 2। अब ये जो टाइप है इसमें हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, फिर न्यूमरेटर भी चेक करना है। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है और न्यूमरेटर में x है। सो ये जो टाइप होता है, अब एक टाइप ऐसा होता है कि हमें न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है न्यूमरेटर को। तो यहां पर देखिए हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2। सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्मेट ऑफ x प्लस 2। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सप्रेस डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है तो हम न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 लाएंगे। अब हमने यहाँ पे 2 को ऐड किया तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ये एक पार्ट कंसिडर करेंगे और ये सेकंड पार्ट। तो हम ये कैसे लिख पाएंगे, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx एंड माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx. So this will get cancelled. So this gives us integration of 1 dx minus 2 remains as it is, integration of 1 upon x plus 2 dx. अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x होता है log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b होता है log ऑफ ax प्लस b इंटू 1 अपॉन a।
तो ये उसी फॉर्मेट में ax प्लस बी के फॉर्मेट में ही है। तो यहां पे हमें log ऑफ x प्लस 2 मिल जाएगा एंड प्लस ऑफ c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अभी ये जो टाइप है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर को अरेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे 4x है। तो आइदर आप 4x को दो पार्ट में लिख सकते हो, 2x या फिर 2x। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हम 4x में से अगर 2 कॉमन ले तो 2 इंटू 2x ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 है, तो हमें ये अगर न्यूमरेटर में लाना है तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि हम इसको 4x प्लस 2 लिख के 1 लिखे, 3 को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। अब ये दो टर्म्स देखिए, ये दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन मिलेगा तो वो मिल जाएगा 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें 2x प्लस 1 लाना था, प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। ये एक टर्म कंसिडर करेंगे पूरा, और ये सेकेंड टर्म। तो इंटीग्रेशन जब सेपरेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, बीच में प्लस dx, मिडल प्लस साइन, 1 upon 2x plus 1 dx. Now if we integrate further or if we solve further, ये cancel हो जाएगा। तो 2 into integration of 1 dx plus integration of 1 upon 2x plus 1 dx. Now just we need to integrate this. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2, what is integration of 1? It is x plus, ये अभी हमने देखा था log of x, अगर अगर हम सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x लेंगे तो वो हमें मिलेगा डायरेक्टली log x। If we consider 1 upon ax plus b, that gives us log of ax plus b into 1 upon a। तो ये हमें मिलेगा प्लस log of 2x plus 1 into 1 upon कोइफिशिएंट ऑफ a। कोइफिशिएंट ऑफ a क्या है? 2, तो 2 आ जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is 5x plus 2 upon 3x minus 4. Again, it is the same format of somewhere what we need to do, where we need to adjust the numerator according to the denominator. So, अब possibility ये है कि यहाँ पर 3 है, ये 5 है, तो 5 को हम 3x और 2x में split कर सकते हैं। दूसरी possibility ये है कि अगर हमने यहाँ पे हमें 3x बनाना है, तो हम इसमें से पहले तो 5 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/5, और डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास 3x माइनस 4 dx। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व द स्टेप। हमें यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ ये 5 है, हमने यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। ये हमने अभी बैलेंस किया, क्यों? क्योंकि हमें 3 लाना है वहां पर। ये dx हो जाएगा, ये इरेज कर देता हूं मैं, एंड देन वी कैन प्रोसीड। अब हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये 3 जो है वो अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में 3x प्लस 6/5 dx अपॉन 3x माइनस 4। अब 3x हमें मिल गया, 4 लाना है और वो भी नेगेटिव, तो 5/3 3x माइनस का लाना है तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब इस 4 को बैलेंस करने के लिए हमने +4 लिख दिया, प्लस 6/5, ये dx हो जाएगा, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मैच हो गया, तो हम उसको एक पार्ट ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 20, 26/5।
and dx and denominator remains 3x minus 4. अब आप ये पार्ट एक सिंगल पार्ट कंसिडर करो और एक दूसरा पार्ट। हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 5/3 है, तो हम 5/3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 5/3 इंटू 26/5 अपॉन 3x माइनस 4 और ये dx। तो यहाँ पे अब हम इसको लास्ट स्टेप में है, ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म्स को बिलोंग करेगा। ये एक टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म। सो 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कांस्टेंट मिलेगा 26/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4 dx। यहाँ पर भी dx आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 26/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4 dx। 1 dx 5/3x प्लस 26/3 log mod of, आई राइट ओवर, नीचे लिख देता हूं, प्लस 26/3 log mod of 3x minus 4 into 1 upon 3, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, प्लस ऑफ c। So next question is integration of x minus 2 upon root of x plus 5 dx. So again what we need to do, we need to adjust the numerator according to denominator. So we get integration of x minus x plus 5 है, तो हमने x प्लस 5 लिख दिया, माइनस 2 लिख दिया, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 5 लिख दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस 5 है, इसीलिए हमने प्लस 5 लिखा, माइनस 2 एज इट इज, और उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 5 लिखा। रूट ऑफ x प्लस 5 dx इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 dx। अब हम इसको ये एक पार्ट कंसिडर करेंगे, ये सेकेंड पार्ट, तो ये डिनोमिनेटर है जो दोनों पार्ट को बिलोंग करेगा। सो हाउ द वे वी कैन रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस 7 कांस्टेंट है, यहाँ पे dx आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 dx। नाउ यहाँ पे हमें मिलेगा रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 5 dx माइनस 7। डिनोमिनेटर में ये रूट है, तो रूट मतलब हो जाता है x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ। अगर वही न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे तो x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 1/2 dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएंगे तो हमें ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 रेज टू हाफ dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमने सिर्फ x रेज टू 5 लिख दिया, इट इज x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ। सो x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ sorry dx। Now we need to just integrate it. After integration what do we get? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 5 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, माइनस साइड माइनस ऑफ x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 upon minus half plus 1 plus c. This gives us, it is not minus half, it is half. So x plus 5 raised to 3/2 and denominator will also be 3/2. If we represent it, it becomes 2/3 minus, this gives us half, 7 into x plus 5 raised to only half upon just half. This 1 upon 2 will move on to the numerator. So this gives us 2/3 into x plus 5 raised to 3/2
minus of 2 into 7 14 into, we can also represent directly at root of x plus 5 plus c. So this is fourth question. Moving on to fifth question. This type is what we have to convert the numerator into the part of denominator, into the way of denominator as it is. So यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में 4x है। तो एक स्टेप हमें ये पता चल गया कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 2x माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx, 1 अपॉन 2 रिमेन्स एज इट इज। ये 2 मल्टीप्लाई जब होगा तो दिस गिव्स अस 4x माइनस ऑफ नॉट 7, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 14 1 4 upon root of 4x minus 1. Now what we need to do, why we have done this step? Because we have to convert the numerator into the format of denominator. तो denominator में -1 है तो 4x minus 1 minus 13 हो जाएगा upon root of 4x minus 1 dx. In the next step 1 upon 2, ये denominator दोनों पार्ट को अप्लाई होगा और ये हाफ सबको अप्लाई होगा। तो 4x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1, मिडिल में माइनस साइन 13 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx. अब व्हाट वी नीड टू डू इज, अब ये न्यूमरेटर में विदाउट रूट है और डिनोमिनेटर में ये x कंसिडर करो जो कि विदाउट रूट है और डिनोमिनेटर में रूट है। तो ये अगर हमें रूट में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रूट एक्स बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन 2 एज इट इज हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 माइनस ऑफ 13 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 रूट में है। अगर हम उसको ऊपर लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में 4x माइनस 1 रेज टू हाफ, इनफैक्ट माइनस हाफ। 1 अपॉन 2, यहाँ पे dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 रेज टू पॉजिटिव हाफ dx माइनस 13 इंटू integration of 4x minus 1 raised to minus half dx, bracket close, will require this space, so ये हम erase कर देंगे। 1 upon 2 remains as it is। 4x minus 1 raised to, it is in the format of x raised to n, तो हमें क्या मिलेगा x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। बट ये एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में नहीं है, ये कंपोजिट फॉर्मेट में है ax plus b raised to n, so that gives us ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into 1 upon coefficient of a, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये इसी फॉर्मेट में है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला नहीं। सो अगर 4x माइनस 1 हम कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 13 4x minus 1 raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1, ये इरेज कर देते हैं हम लोग। तो ये हमें मिलेगा इंटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, what is that, 4 and plus c, 1 upon 2 remains as it is। Now if we solve this 4x minus 1, this gives us 3 by 2, 3 by 2 4x minus 1 raised to 3 by 2, ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ये हमें मिलेगा 3 by 2 इंटू 1 by 4 minus 13। If we solve this 4x minus of 1, this gives us half, again यहाँ पर भी हाफ मिलेगा और इंटू 1 by 4 प्लस c। अब हमें इसमें
हाफ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई भी करना है. सो द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप विल बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये 2 मिलेगा. ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और ये 2 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12. 4x माइनस 1 रेज टू 3/2 अपॉन 12. अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो माइनस ऑफ 13/4, ये रूट है, तो वी कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट इट एज 4x माइनस 1 प्लस सी. ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है. आपको प्रॉपर स्टेप्स ध्यान देने पड़ेंगे, अगर छोटा सा भी माइनर आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये टाइप का सम हमने किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में. इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन cos 2x dx. तो sin 2x का इंटीग्रेशन आई होप सो सबको पता होगा. इट इज 2 sin x इंटू cos x, 2 sin of x. नाउ अब इस sin 2x से यू कैन डिराइव मेनी फॉर्मूलाज ऑफ दिस टाइप. जैसे कि अगर हमने sin 4x लिखा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x, 2 sin 2x इंटू cos of 2x. इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं sin 8x, दैट गिव्स अस 2 sin 4x इंटू cos 4x. वी कैन ऑल्सो राइट एनी पार्ट. अगर हमने 6x लिया तो ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 3x. ऑलवेज डू रिमेंबर, यहाँ पे जो भी होगा 6x है तो यहाँ पे उसका हाफ और हाफ होगा. यहाँ पे 8x है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. यहाँ पे 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए अगर हमने sin 5x लिखा तो हमें मिलेगा 2 इंटू साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉज ऑफ 5x अपॉन 2. सो ये फॉर्मेट है फॉर्मूले का. अब ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आप कोई भी n नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप यू कैन डिराइव. तो यहाँ पर हमारे पास sin 4x है तो हम उसको 2 sin 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं अपॉन cos 2x एंड dx. cos 2x कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x, ये 2 कांस्टेंट है. sin 2x का डेरिवेटिव एवरीवन नोज दैट माइनस 2 cos 2x अपॉन 2 प्लस सी. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x प्लस सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x. अब ये टाइप का भी हमने सब किया है, बट द सेम सम वी हैव नॉट डन, तो ये कर लेते हैं. 1 को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. बट बिफोर दैट ये 1 एज इट इज रखते हैं. यहां पर हम देखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x अपॉन 2. अब हम 1 को कन्वर्ट करेंगे हमारे रिक्वायर्ड पार्ट में. अब हम 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x अपॉन 2. इसको हम रिड्यूस करेंगे. ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में, अब हम उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, 2 हो गया ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या मिलेगा, a हमारे पास cos 5x by 2 plus sin 5x by 2 the whole square. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा cos 5x by 2 प्लस sin 5x by 2 का इंटीग्रेशन एंड dx. सब जगह dx आएगा. एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट तो आप लोग ये कंसिडर कर सकते हो कि माइनर मिस्टेक्स कैन बी टॉलरेटेड और इग्नोर. अब sin 5x का इंटीग्रेशन हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे.
cos 5x/2 प्लस साइन 5x/2 का इंटीग्रेशन। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये dx हो जाएगा cos 5x/2, that gives us sin 5x/2 प्लस, अब cos का इंटीग्रेशन साइन, एक्सट्रीमली सॉरी, cos का इंटीग्रेशन sin 5x/2 अपॉन 5/2 माइनस ये हो जाएगा cos, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस तो हमने माइनस लिख दिया, cos 5x/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब ये 5/2 जो हो जाएगा वो 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू साइन ऑफ 5x/2 माइनस ऑफ अगेन 2/5 cos 5x/2 plus c. So we can take 2/5 common, sine of 5x/2 minus cos of 5x/2 plus c. So moving on to the next question, cos square x, again a formula dependent integration का sum, cos square x, cos 2x के हमारे पास जितने फॉर्मूले मैं फिर से एक बार लिखूंगा, cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x and 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1, यहाँ भी cos 2x है, ये भी cos 2x है। हमें cos square x चाहिए, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 इस साइड आएगा तो ये 1 प्लस cos 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 cos square x, 1 प्लस cos 2x, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो cos square x हो जाएगा। So this can be represented as 1 plus cos 2x upon 2 dx, 1 upon 2 constant, integration of 1 dx plus integration of cos 2x dx, 1 by 2 x plus integration of cos 2x is sin 2x upon 2 plus c, 1 by 2 we can multiply it throughout, so ये हो जाएगा x by 2 plus sin of 2x by 4 plus c. Moving on to the next question, integration of 2 upon root of x minus of root of x plus 3. अब जहां भी हमें डिनोमिनेटर में दो टर्म दिखेंगे, डिनोमिनेटर में दो टर्म और वो दोनों टर्म सेपरेटेड है प्लस या माइनस से और वो रूट में है, तो हम ऐसे टाइप के सम्स को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। तो इसमें रैशनलाइज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन से, डिनोमिनेटर में जो साइन होगा उसके प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा, ये डिनोमिनेटर में माइनस है तो रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 dx. डिनोमिनेटर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 3। न्यूमरेटर में 2 है तो 2 कांस्टेंट कंसिडर हो जाएगा और हमें ये मिलेगा रूट ऑफ एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर अगर हम सॉल्व करेंगे सो विल गेट रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन x minus 3, negative positive cancel, minus 3 it becomes a constant, 2 upon minus 3 integration of root of x plus 3 dx. if we move further तो हमें सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, ये 2/3 कॉमन हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x plus 3 and dx. रूट इज नथिंग बट रेस टू हाफ, हम और एक स्टेप लिख देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन dx प्लस x प्लस 3 रेस टू अगेन हाफ इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज माइनस 2/3
minus 2 by 3 x raised to ये हो जाएगा -2/3 x रेज टू पॉजिटिव हाफ प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव हाफ प्लस 1 प्लस x प्लस 3 रेज टू अगेन पॉजिटिव हाफ प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव हाफ प्लस 1 प्लस c -2/3 x रेज टू 3/2 अपॉन x रेज टू 3/2 3/2 अगर हम ये 3/2 हो जाएगा बट ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस x प्लस 3 रेज टू 3/2 अपॉन ये 3/2 होगा बट ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 होगा। अब आपके पास यहाँ पे माइनस साइन कॉमन है, माइनस बाहर है तो वो सब में मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो -4/9 x रेज टू 3/2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस अगेन 4/9 x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस c। हम इसमें और एक स्टेप कर सकते हैं कि हम दोनों में से माइनस वी कैन यहाँ पर हम 2/3 कॉमन ले सकते थे, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अगेन हियर वी गॉट रूट, हमें रूट मिला है तो सेम स्टेप हम इसको रैशनलाइज करेंगे, बट कैसे रैशनलाइज करेंगे? डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन 7x plus 2 minus of root of 7x minus of 5 into root of 7x minus 2 plus root of 7x minus of 5 upon root of 7x minus 2 plus root of 7x minus 5. Denominator is in the format of a minus b और a plus b. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a square minus b square. ये हम 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, तो ये 3 हम बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7x माइनस 2 माइनस ऑफ 7x माइनस 5। न्यूमरेटर हमें मिलेगा रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x minus 5 and dx. If you open the bracket of denominator 7x minus 2 minus 7x plus 5 and numerator remains as it is 7x minus 2 plus root of 7x minus 5 and dx. So minus 7x plus 7x get cancelled. 5 minus 2 that gives 3 denominator 3 numerator it also get cancelled. So we get only two terms, that is this is root. We can represent 7x minus 2 raised to half, that to integration dx plus again integration of 7x plus 5 raised to half dx. Now we need to integrate separately. So 7x minus 2 raised to half plus 1 upon half plus 1 into 1 upon 7 into 1 upon coefficient of x again plus 7x plus 5 raised to half plus 1 upon half plus 1 into 1 upon coefficient of x, that is 7. So this gives us 3/2 in the denominator. 7x minus 2 raised to 3/2 upon this gives us 3/2. So we can represent 2/3. ये 3/2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू 1/7 प्लस अगेन ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू 7x प्लस 5 रेज टू 3/2 इंटू 1/7 1 2/3 1/7 2/3 1/7 दोनों जगह पे सेम है, तो व्हाट वी कैन डू ये हो जाएगा सॉल्व करके 2/21। तो 2/21 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा, हमने एक मिस किया चीज इंटीग्रेशन करने के बाद हमने c नहीं अप्लाई किया, तो वी नीड टू अप्लाई द c। 7x minus 2 raised to 3/2 plus 7x plus 5 raised to 3/2 and plus c. So this is the
final step for 10th question. Moving on to the next one, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एंड दिस इज नथिंग बट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. अब ये सॉल्व कैसे होगा, हमें क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/x⁻³ एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 11/2, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स. हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस केस में हम इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स. एफ ऑफ एक्स को अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाता है, और उसी एफ डैश एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये ऑपोजिट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होता है. तो जो एफ डैश एक्स होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा. तो हमारे पास एफ डैश एक्स है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, इसमें एक वैल्यू दिया है. सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स. तो एफ ऑफ एक्स कब मिलेगा, जब हम एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 3/x⁻³ dx. एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, एज वी नो दैट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2 माइनस, अब ये डिनोमिनेटर में होगा नहीं तो हमें इसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा. न्यूमरेटर में लेंगे तो x⁻³ होगा, तो इसका डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो हम इसको 3 ऐसे लिख सकते हैं. इसका इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस ऑफ c. एफ ऑफ एक्स मिलेगा हमें x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ ये -3 प्लस 2, दैट गिव्स अस -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 इंटू x⁻² प्लस सी. अब हमें इसमें और एक वैल्यू दी गई है, और वो वैल्यू है एफ ऑफ 1 का वैल्यू है. तो एफ ऑफ 1 का अगर हम x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे 1. एक बार एफ ऑफ एक्स को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, x²/2 प्लस 3/x² प्लस सी. अब एफ ऑफ 1 x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा, प्लस ये 3/1 मिलेगा, प्लस c मिलेगा. अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, वन मिस्टेक वी हैव डन, यहाँ पे 1 आएगा, हमने 2 लिखा है, 1 आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा. अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 11/2, 11/2 प्लस इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1/2 प्लस 3/2 4/2, दैट गिव्स अस 2. सो वैल्यू ऑफ c विल बी, ये 2 इस साइड लेंगे, 11/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू c. वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, 11 इंटू 11 माइनस 4/2 c का वैल्यू मिलेगा हमें 7/2. तो एफ ऑफ एक्स मिल गया हमारा. एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ c का वैल्यू नहीं पता था, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें हमारा एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा. एफ ऑफ एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 7/2. So this was all about first exercise of integration. We'll meet very soon with the second exercise or the further exercise of integration. Thank you for watching this video.